Hey guys, good morning. My name is Jyoti and welcome to Vidyadan Academy. So guys, please like कीजिए, share कीजिए and subscribe कीजिए मेरे चैनल को because I am going to teach you for the NEET examination. I am going to clear you just to boost up your preparation. It will be much better. It will be much effective to you all of you guys and my material is more than enough to prepare your exam. Right guys, here I am going to discuss about the cell, the unit of life. This is me. I'm a scientific research editor in ICR and you can see my profile as well as in the slide. So what will be our strategy to clear the NEET exam guys? We will learn the basics and detailed concepts of every unit, right guys? We will discuss and do more practice of previous year questions of NEET exam with explanation. We will do revision of every chapter and unit. We will learn and do revision again with the PYQs, right guys? So here I am going to discuss about all of that our strategy will be go further. ठीक है? I make sure you that it will be much helpful to you. So चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा because it is a qualitative education guys, not a quantitative, right? So here is our motivational quote. राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती सुबह सूर्य बनकर भी वही चमकता है. सो गाइज अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को एक न्यू डायरेक्शन दीजिए, एक सही वे में तैयारी कीजिए एंड आई एम हियर टू गाइड यू. बिलीव मी, it will be really boost up your preparation and of course we will do practice questions, we will do more and more PYQs, so it will be much helpful to you. I am here to start with the basics because basics clear hona bahut zaruri hai so that you can solve your questions, so that you can achieve your goal, right guys? So what is cell? Cell is the fundamental structural unit of all living organism and is sometimes called the building block of life. The cell consists of primarily of an outer plasma membrane. Here you can see the diagram of animal cell guys. This is the animal cell. There is a cell organelles, right? Mitochondria, peroxisome, centrosome, all are the organelles are present in the एनिमल सेल. वेल डेवलप्ड होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, ठीक है? सो डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करते हैं तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने किस में देखा था? डेड सेल में देखा था गाइस, डेड सेल. और वो डेड सेल क्या थी? कॉर्क. कॉर्क किसका थी? प्लांट के कॉर्क. आपको पता होगा प्लांट में जो कॉर्क प्रेजेंट होता है उसमें उन्होंने क्या देखा था? सेल को देखा था और वर्ड दिया था सेलुला और सेल्यूली और सेल्स, राइट गाइस? द सेल्यूलोज वॉल्स वर विजिबल. सेल्यूलोज वॉल्स क्या थी? वो ही विजिबल थी, ठीक है? जैसे कि यू कैन इमेजिन दैट इट इज योर होम, राइट, एंड यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन, सो दिस इज कॉल्ड द सेल. एक बड़े घर में एक छोटा सा रूम और उस रूम के अंदर भी स्टोर रूम, दिस इज कॉल्ड द सेल, राइट गाइस? सो बाद में आए ल्यूवेनहॉक. ल्यूवेनहॉक वाज अ डच साइंटिस्ट. उन्होंने क्या किया? उन्होंने लिविंग सेल में किसको देखा? लिविंग सेल में लिविंग सेल देखी उन्होंने, ठीक है ना? लिविंग सेल देखी, अपने ही माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया था, ठीक है? बट ही डिड नॉट गिव द टर्म इज सेल. उन्होंने सेल टर्म यूज नहीं किया था, वी रिमेम्बर दैट. फिर जर्मन बॉटनिस्ट आए श्लीडन, ठीक है? बॉटनिस्ट थे तो उन्होंने प्लांट में सेल को देखा और जूलॉजिस्ट श्वान थे, उन्होंने एनिमल सेल देखी. फिर आए रुडोल्फ कार्ल विर्चो. उन्होंने क्या कहा कि सेल जो होती है अपनी ही प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म्ड होती है बाय द सेल डिवीजन, राइट गाइस? जब सेल डिवीजन होती है, सेल जब डिवाइड करती है तो एक न्यू सेल फॉर्म करती है और वही न्यू फॉर्म क्या बनाती है? एक होल ऑर्गेनिज्म को डेवलप करती है. दिस इज कॉल्ड ओमनिस सेलुला ई सेलुला, और उन्होंने उसको क्या कहा? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, राइट गाइस? सो
On that, the research and observation of these scientists led to the formation of the cell theory. और इसी के बेसिस पे क्या हुआ, इन्हीं के बेसिस पे, साइंटिस्ट के थ्योरी के बेसिस पे सेल थ्योरी डेवलप की गई, जिसमें लिखा गया था all living things are made up of cell. Cells are the basic structural and functional unit of all living beings. All cells are arise from pre-existing cell by the cell division. Right? I told you earlier that cell is derived from the pre-existing cell. Cell जब divide होती है, cell में जब division होता है, उसके बाद में एक new form होता है, और वही new form एक organism को develop करता है. Cells are totipotent. यानी कि टोटिपोटेंसी मीन्स क्या होता है, टोटिपोटेंसी यानी कि वो एबिलिटी जो एक सेल क्या करती है, अपने उसी पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने की एबिलिटी. एक सेल अपने ही जैसे, मतलब पूरे होल ऑर्गेनिज्म को बनाने की एबिलिटी जिसके पास हो, उसे बोलते हैं टोटिपोटेंसी. एंड एनीबडी कैन टेल मी द एग्जांपल इज दैट, द एग्जांपल इज जाइगोट. Right guys, zygote is the example of the totipotency cell. So totipotency is the ability to living cells to form the whole organism unless and until they have become extremely specialized. यानी कि जब तक वो extremely specialized नहीं होती कि भाई हमको आगे जाके इस organ के form में बनना है, तब तक वो क्या होगी, टोटिपोटेंसी होगी. अगर उसका सेल का एक फेट डिसाइड हो जाता है तो उसको टोटिपोटेंसी नहीं बोला जाता, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फेट को ही गेन कर पाएगी. नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स इन लिविंग बीइंग्स की बात करते हैं. तो सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड टुगेदर टू मेक टिश्यूज. टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है. एंड एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्किंग टुगेदर फॉर्म्स द ऑर्गेनिज्म. राइट गाइज, आपको पता होगा कि सेल से क्या बनता है, सेल से टिश्यू बनते हैं, एंड टिश्यू से क्या फॉर्म होता है, टिश्यू से ऑर्गन, एंड ऑर्गन विल फॉर्म द होल ऑर्गन सिस्टम. राइट गाइज, दिस इज द बेसिक्स. आई एम हियर गोइंग टू टीच with the basics so that it will be helpful to solving your questions with. I will also explain the question. I will also do the PYQs and all. We will do that, and definitely we will achieve our goal. Definitely need तो हम कर ही लेंगे, right? Size of cells की बात करते हैं तो there is a variety in cell number, shape and size in different organism. Even cells within the same organism show enormous diversity in size, shape and internal organization. ठीक है, साइज वेरी करती है, कोई फिक्स शेप नहीं होती है सेल की, वो एक वेरी करता है. ठीक है, सेल शो a great range in their size. Most cells are microscopic and can be seen only under a powerful microscope. कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंडर ही देखी जा सकती है, लेकिन कुछ होती है जो हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं. एग्जाम्पल, आपने अनियन का एक्सपेरिमेंट किया होगा अपने बचपन में, राइट, 11th-12th में आपने किया होगा. द लार्जेस्ट सेल इज एन एग ऑफ ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच का सबसे लार्जेस्ट सेल किसकी होगी, सबसे लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच का एग होगा, जो कि कितना है, 6 इंचेस इन डायमीटर विद शेल, 3 इंचेस विदाउट द शेल. राइट गाइस, और स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट किसी को पता है, एनीबडी कैन गिव मी द आंसर, दैट इज PPLO. और इसे क्या बोला जाता है गाइस, माइकोप्लाज्मा. राइट गाइस, 0.1 माइक्रो एम का इसका साइज होता है गाइस. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडेबल रहा होगा एंड समझ आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं. राइट गाइस, सो द स्मॉलेस्ट सेल्स फॉर द फार ऑब्जर्व्ड इज कंसिडर्ड टू बी PPLO, that is mycoplasma, which is 0.1 microM. The smallest cell in human body is RBC. Remember that smallest cell कौन सी होती है, RBC होती है, जबकि largest cell कौन सी होगी, nerve cell होगी. Cells are small in size for two reasons. टू रीजंस की वजह से सेल्स का क्या होता है, साइज जो है वो स्मॉल होता है या वेरिएंट करता है. क्यों, क्योंकि उसके पास एक तो एक्टिव साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, दूसरा सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम रेशो
यानी कि सरफेस एरिया जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा वॉल्यूम उतना ही कम होगा। A group of small cell has a relatively larger surface area than a single large area volume, same volume. It is an important factor as a cell require nutrients, oxygen and other materials of its survival and growth. हर किसी को अपने सर्वाइवल के लिए, अपने ग्रोथ के लिए खाना चाहिए होता है, फूड की नीड होती है, राइट। इसी तरह सेल को भी अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। Hence, it is necessary that all these materials should enter through its surface. As cell grows larger at some point, its surface area becomes too small. जब सेल क्या होगी अपना पूरा मतलब सेल जब ग्रो कर जाएगी, लार्ज साइज हो जाएगा, तो क्या होगा, जो मटेरियल्स होगा उनको क्या होगा, क्विकली वहां से न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स आएंगे, सेल का साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। एंड सेल क्या होगी अपना साइज इंक्रीज कर लेगी, सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया छोटा हो गया है, ठीक है, सरफेस एरिया स्मॉल हो गया लेकिन इसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया। यू कैन सी हियर एरिया जो होगा, एरिया कम होगा गाइस यहाँ पे, लेकिन वॉल्यूम देखो आप, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। सो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, सेल क्या होगी अपनी साइज को इंक्रीज कर पाएगी, जिससे कि क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीजेस एंड कॉजेज द फंक्शन लेस एफिशिएंटली। सेल शेप की बात करते हैं तो सेल्स come in a variety of shapes depending on their function they perform. Therefore, cells show a lot of variation in their shape as follows. जैसे कि oval shape, irregular shape, oblong, elongated. These are the cell, right guys? So cell के बहुत सारे shapes हैं, ठीक है। The shape of cell is found in the unicellular green algae is Chlamydomonas. Irregular cell की बात करते हैं तो अमीबा और WBC, राइट। WBC is also the example of irregular. इसकी कोई definite shape नहीं होती है, लेकिन जब irregular होगा, लेकिन जब क्या करेगी WBC हेल्प करता है, इनगल्फ कर लेती है और इनगल्फ होकर डिस्ट्रॉय कर लेते हैं हार्मफुल मटेरियल्स को जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है गाइस। ऑब्लोंग की बात करते हैं तो पैरामीशियम इज स्लीपर शेप्ड और ऑब्लोंग होगा। एलोंगेटेड की बात करें तो मसल सेल्स आर एलोंगेटेड एंड कॉन्ट्रैक्टाइल एंड दे कैन बिकम लॉन्गर और शॉर्टर एंड दस हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बोन्स, और बोन्स के मूवमेंट में यूजफुल होता है, हेल्प करता है, ठीक है। ओवम की स्ट्रक्चर, यू कैन सी हियर द डायग्राम ऑफ द सेल शेप्स एंड स्ट्रक्चर। Sperm cell, WBC, nerve cell is the largest cell in human body, right guys? Right guys? Intestine, red blood cells, bones, here is the structure, right? So thread like structure की बात करें तो nerve cell जो क्या होती है, long होती है and have wire like branches coming out of it. This enables them to carry impulses over long distances in the body also. The wire-like branches helps it to make, connect with and carry messages between brain and other parts of the body. Hence, nerve cells are especially adapted to transmit messages. Cubical और rectangular की बात करें तो the cells of leaf are cubical or rectangular. The cells of the plant may be round, oval, cubical, rectangular and polygonal. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपने नर्व सेल का देखा। नर्व सेल क्या करती है, हमारे ब्रेन तक सेंस को पहुंचाती है ताकि हम उससे रिएक्ट कर पाए। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे माइंड तक जाएंगे, सेंस को जनरेट करेंगे, इम्पल्स को जनरेट करेंगे, मैसेज देंगे ब्रेन को ताकि अदर पार्ट ऑफ बॉडी कैन डू द फंक्शन एफिशिएंटली, राइट गाइस। नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो द नंबर ऑफ सेल्स वेरीज इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेल। ऑल ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, ठीक है। नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड, दैट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनि मीन्स वन, यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होंगे,
इनमें क्या होता है गाइस, न्यूक्लियस जो होता है वो प्रिमिटिव होता है, ठीक है, प्रिमिटिव होता है और एक ही सेल क्या करती है, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज करती है। एक ही सेल को सारे काम करने होते हैं, सारे एक्टिविटीज क्या करनी होती है, परफॉर्म करनी होती है, ठीक है। ओनली वन सेल कैन डू ऑल एक्टिविटीज, राइट गाइज। इनमें कोई डिवीजन नहीं होता है, नो डिवीजन, देयर इज नो डिवीजन, राइट गाइज, कोई डिवीजन नहीं होता है इनमें, ठीक है। So organisms which are made up of a single cell are called unicellular organism, like amoeba, paramecium, euglena, bacteria, etc. are the example of unicellular. In these organisms, the single cell controls all the body functions like growth, movement, nutrition, and reproduction. In these cells, there is no division of labor as the single cells have to perform all the activities. Right guys? Organisms की बात करें, here you can see the diagram, unicellular and multicellular. Unicellular like amoeba, bacteria, paramecium, and the multicellular are plant and animals. Now multicellular की बात करते हैं तो न्यूक्लियस क्या होगा, वेल डेवलप्ड होगा, न्यूक्लियस क्या होगा, वेल डेवलप्ड होगा। और क्या क्या हो सकता है गाइस, सेल ऑर्गेनल्स जो होंगे, सेल ऑर्गेनल्स जो होंगे वो क्या होंगे, दीज विल बी मेम्ब्रेन बाउंडेड, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, जबकि यूनिसेलुलर में नहीं होता है, ठीक है। सेल डिवाइड भी करेगी एंड काफी एडवांस्ड होते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म विच are made up of more than one cell are called multicellular organism. For example, like fungi, plants, animal are example of multicellular organism. All the cells of multicellular organism have a similar basic structure and similar basic life activities. These cells group together to form tissues, tissue form organ, and organ give rise to organ system that performs specialized functions, right? Here you can see the differences between the unicellular and multicellular organism. ठीक है guys, तो देखिए, the organism made up of single cell is called unicellular. The organism is made up of large number of cells are called multicellular. There is no division, there is division of cell. ठीक है, सेल्स क्या होगी, स्पेशलाइज्ड होगी किसमें, मल्टीसेलुलर में, और हर एक सेल का अपना एक फंक्शन होगा, जबकि सिंगल सेल ही पूरे फंक्शन को, एक ही सेल क्या करती है, सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है, सो दैट इनका लाइफ स्पैन भी क्या होगा, छोटा होगा, इनका लाइफ स्पैन क्या होगा, बड़ा होगा, लॉन्ग होगा। एग्जाम्पल एज आई टोल्ड यू बिफोर, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, etc., and fungi, plants, and animals. Here, the complexity in multicellular organism is that cell से tissue, organ system and organism का develop. So, I hope you like my video guys and it will be helpful to you while doing your preparation guys. So channel को मेरे like कीजिएगा, subscribe कीजिएगा और share ज़रूर कीजिएगा guys, भूलना नहीं, because I am here to teach you a very qualitative education providing you, right guys। हम एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो हम लैक करेंगे, ठीक है। तो माय फेवरेट पर्सन मिस्टर कलाम, आई रियली रेस्पेक्ट हिम और एवरी स्टूडेंट हैव रेस्पेक्टेड हिम, और सबको करना भी चाहिए यार, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल सेट किए हैं अपनी लाइफ के। तो अपने आप से जरूर ये 5 लाइनें जरूर कहिएगा हमेशा, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी एंड आई एम अ विनर एंड टुडे इज माय डे। सो अपने आप से ये बातें कहिए और डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल। थैंक यू सो मच गाइज, राइट। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड गाइज शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। बाय बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।